In the court of public opinion, where the gravel of awareness strikes with resounding impact, we find ourselves immersed in a case of paramount importance, the burning issues of legal affairs. Our protagonist, the esteemed advocate of Supreme Court, Mr. R.K. Sarma, steps into this arena not merely as an attorney, but as a guide through the labyrinth of legal intricacies. The docket is filled with pressing matters that demand our attention and contemplation. Ladies and gentlemen, an honored guest, good afternoon. We find ourselves witness to a case that transcends the confines of a courtroom. And as we all know, today we are embarking on a journey of legal enlightenment led by none other than the maestro himself, Advocate Mr. R.K. Sarma, sir. Sir is joining us in this exploration of burning issues of legal affairs. Imagine, if you will, a courtroom where the walls echo with the weight of decisions and each verdict ripples through the fabric of our society. This isn't just a case, it's a narrative that intertwines with very essence of justice. And together we shall all unravel the threads of this legal tapestry, examining the intricacies that shape on our daily lives. And Mr. Sarma sir will be guiding us in this. Sir belongs to district Bulandshahr, which is now bifurcated as Gautam Budh Nagar, Greater Noida, UP. And he is also the author of Kanun Coverage series, which he had inked in 6 number of books carrying burning issues based on questionnaires thrown by the public far from the country. He is also engaged around for 23 years in legal field and in the sphere of social reforms sensitization programs for last 5 years for para forces, RPF, BSF, CRPF, SSP, RPSF, state police, jail inmates, home guards, universities, MNCs and other institutions. He has faced more than 1 lakh of people yet, settled 1500 compoundable cases of those 327 families made reunite. He is also under the umbrella of National Socio-Legal Forum, renders legal services for free to those who are most in need, to those who are hurt, helpless, and those who are unaware of their rights. Sir earlier had remained in the teaching profession for the past 20 years, even for aspirants of competitive exams. We are blessed, privileged, and honored to have Sir amongst us today. And I invite Pooja Jha ma'am to felicitate R.K. Sarma sir. ये पौधा प्रकृति का प्रतीक है और ये हंसराज कॉलेज के लोगों के साथ सर ये कॉफी मग है जो हंसराज के लोगों के साथ है। थैंक यू। हंसराज महाविद्यालय का जो टोकन ऑफ एप्रिशिएशन होता है वो हमेशा मुस्कुराते रहो ही होता है। हमारी प्राचार्य आज हमारे मध्य अभी उपस्थित नहीं है और उनका जो मोमेंटो रहता है वो इस बात का हमेशा संदेश देता है कि न जाने किसी भी तरह का वो कंडीशन हो, चाहे कोई भी तरह की परिस्थिति रही हो आपके सामने, एक पल इस मोमेंटो को देखिए, मुस्कुराते रहो और अपने काम को मुस्कुराने के साथ करिए। यही उनका भी संदेश रहता है और महात्मा हंसराज जी का भी संदेश रहा है उनके जीवन से। तो आज इस लीगल अवेयरनेस सीरीज जो कि आज शायद प्रारंभ हो रहा है और R.K. शर्मा सर ही हम लोगों को गाइड करेंगे कि कानून जब भी इस बात हमारे जहन में आता है ना तो हम लोग डरते हैं कि ये तो उन लोगों की चीज़ है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम लोग का इसमें से क्या ही लेना देना। बट छोटे से छोटे शब्द हों कोई भी कानून के, किसी दस्तावेज के, चाहे वो किसी भी जजमेंट का, वो हमारे जीवन को बहुत बड़े लेवल पे एक तरह से इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, वो चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो उन्हीं छोटे छोटे चीज़ों से लेके बड़े बड़े चीज़ों की बारीकियों को भी हम लोग समझेंगे R.K. शर्मा सर के साथ। मेरा इंट्रोडक्शन जो परिचय दिया गया इतना भारी है क्योंकि मजबूरी थी। मैडम ने कहा कि आप अपना परिचय भेजिए, CV भेजिए, तो मैंने CV में जो मेरे से बना मैंने सारा वो लिख डाला। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ कि ये इतना सारा इंट्रो देने में ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारा बोझ पाल लिया और मैं अपने ऊपर ही एक फंबल मार रहा हूँ कि मुझे अपने आप ही एकदम इसको सुनकर एक बात याद आ रही है। एक गधा था, उसके ऊपर भगवान की कुछ मूर्तियाँ थी, आइडल्स विसर्जन करने कुछ लोग जा रहे थे, तो जो रास्ते में पब्लिक थी वो सब गधे को देखकर नमस्कार प्रणाम कर रहे थे। जब गधे से वो मूर्ति उतार ली गई, गधा जब वापस आया तो किसी ने भी गधे को प्रणाम नहीं किया क्योंकि मूर्ति उतर चुकी थी। गधे ने इधर देखा उधर देखा, कोई भी गधे की तरफ नहीं देख रहा है और गधे ने अपनी आदत के हिसाब से जो ऊंचे ऊंचे बोलना है वो भी शुरू कर दिया।
तो अड़ोस पड़ोस के जो जो लोग थे जिन पे डंडी थी, उन्होंने उसमें 2 और मार दी। उसमें घर पहुंचा, उसने मालिक से पूछा कि जब मैं इधर से गया था तो मुझे इतना प्रणाम नमस्कार किया गया था, और मैं उधर से आया हूं तो किसी ने मुझे देखा तक नहीं, और फिर मैंने बोलने की कोशिश की तो मेरी पिटाई कर दी। तो उससे कहा, बे गधे, वो प्रणाम जो किया जा रहा था वो उन मूर्तियों को किया जा रहा था जो तेरे ऊपर रखी थी, ना कि तुझे। तो इंसान का देखा जाए, इंसान का अब इस दुनिया में आजकल का जो भौतिकवाद है, हम जो दबाव, प्रभाव, प्राधिकार, ये सब चीजें, हम उसके जो उपाधियां हैं, एट्रीब्यूशंस हैं जो उससे प्रभावित होकर हम क्रिएशन रिएक्शन करते हैं। दूसरी बात बताऊं कि इस दुनिया में एक बात श्रेष्ठ है, ध्यान से सुनना है इस बात को। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही मैं बता रहा हूं, मैं कोई सुनी सुनाई, मैं किसी का कोई डायलॉग नहीं बोलूंगा। इस दुनिया में मैंने ऐसा सोचा है कि एक बात श्रेष्ठ है कि यहां कोई बात श्रेष्ठ नहीं है। नोट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं, आप वकील से ज्यादा इस बात को कोई नहीं जानता। वकील अपनी वाक्य रचना के साथ शब्दों की माला पिरोकर जुडिशल ऑफिसर के सामने ऐसे प्रोड्यूस करता है कि जुडिशल ऑफिसर पहले कुछ और मन बना के बैठा होता है, उसे देखकर जो उसका प्रोसीडिंग्स होता है, जो पुलिस ने बना के भेजा था। लेकिन जब वकील अपने उसके सामने पेश करता है तो कंफ्यूज हो जाता है, और वहीं वो बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू एक्यूज्ड। इसीलिए इस देश का ये हालत हो गई है कि यहां अब मैं ये नहीं कहूँगा, आप ये मत मानना कि मैं पॉलिटिक्स से बिलोंग करता हूँ। अब 42% केसों में जजमेंट जो है पॉजिटिव आई हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, और 2010 का आप उठा के देखिए कि 28% था, और 2009 में मात्र 23% था। प्रोसिक्यूशन सतत 100 में से 77 केस हारा और 23 जीता 2009 में। अब बताइए कौन गलत था? पुलिस गलत थी। और जब हारते हैं तो कब हारते हैं? जब बहुत सालों तक तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख लगती रहती है, तब हारते हैं ना भाई। तो अगर वो तब हारा तो अंदर वो रहा, उसका कंपनसेशन कौन देगा? क्योंकि वो तो बरी हो गया, 77 बरी हुए। आप समझ रहे हैं ना? 77 बरी हुए, 23 को पनिशमेंट मिली, और वो जेल में रहा, तो उसका कौन देगा? कंपनसेट कैसे किया जाएगा उसको? और मजे की बात देखिए, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द सेंस ऑफ जस्टिस लेफ्ट हियर। एक बात बता रहा, 23% नहीं 32%, अभी मैंने निकाला है। 32% केस को जो सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल होती है, ये जानते हैं इन चीजों को, आप समझ रहे हैं ना? सेशन कोर्ट में जो ट्रायल होती है, जो सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजमेंट दे रहे हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी, हारने वाली पार्टी कहां जाती है? हाई कोर्ट जाती है ना? हाई कोर्ट 32% को रिवर्ट कर देता है। यह रेशो है 2022 का। और हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जाती है, एसएलपी जानते हैं ना, स्पेशल लीव पिटीशन, अपील जो तो फाइनल अपील जाती है, 28% को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को बदल देता है। अब यह बताइए सही कौन है? बताइए सही कौन है? सभी अपनी जगह सही है।
बेटा ये कहने से अभी देखा नहीं है ना, क्योंकि एक संवेदना होती है और एक स्वयं वेदना होती है। संवेदना तो ये है हा 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 हाय हाय हाय, बड़ा बुरा हो रहा है इसके साथ। जब खुद के साथ होता है वह स्वयं वेदना होती है। जब बच्चों की जवानी अंदर जाती है, आप एक बात बताइए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। 23 साल का मेरा क्रिमिनल साइड से मैं वकील रहा हूं। ट्रायल कोर्ट भी किया, फिर हाई कोर्ट भी किया, फिर सुप्रीम कोर्ट भी मैंने किया। पहली बात तो लिस्ट पेंडेंसी आज 5 करोड़ 11 लाख है। टोटल लिस्ट पेंडेंसी जो है दो तरह की है, दो तरह के लिटिगेशन हैं देश में। एक तो है जुडिशियल लिटिगेशन, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में, सारों को लगा लिया जाए तो कितना बन गया? 5 करोड़ 11 लाख। नए आंकड़े आपको दे रहा हूं मैं। और जो अभी संजय कौल साहब ने, जस्टिस कौल ने जो कहा है, उसमें 5 करोड़ 11 लाख तो ये हो गए, और अब 5 करोड़ वो केस हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लिटिगेशंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव लिटिगेशन कौन से होते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एग्जैक्टली, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ज्यूरिडिक्शन में होते हैं, जो रिवेन्यू के होते हैं, जो कमिश्नर के, मंडल कमिश्नर के पास होते हैं, उन्हें कहते हैं क्वासी जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव तो कितने हो गए? 10 करोड़ 11 लाख। मैंने अपनी बुक्स में लिख डाला है कि वो वक्त आने में ज्यादा वक्त नहीं है कि जब कोई भी जो केस को एस्टेब्लिश करेगा वो अपनी जिंदगी में अपना जजमेंट नहीं देख पाएगा। बिहार से हम, मेरे बच्चे बैठे हैं, ये बिहार से एलन मिश्रा हत्याकांड समस्तीपुर में कब हुआ था? अक्टूबर 75 में। वो आज भी पेंडिंग पड़ा है वो केस। कितने साल हो गए? जियावती वाला केस राजस्थान से 1960 से आज भी पड़ा है। बड़ा बाजार कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने का, वो अब ठंडे बस्ती में डाल दिया है। कौन से यार, क्यों, कौन से सेंस ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हो? रोज हम पढ़ते हैं। अब यही बताया है कि आपने बड़ी आसानी से कह दिया उस बच्चे ने कि अपने अपनी सोच की बात है। मैंने मान लिया, यू आर राइट, एब्सोल्युटली यू आर राइट, कि अपने अपनी सोच की बात है। लेकिन बात यह भी तो देखिए कि गैप कहां आया, गलती कहां हुई। हाईकोर्ट के जजेस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसेस जब रिटायर हो जाते हैं तो काला कोट पहनने की उन्हें आदत होती है, और एलीट गैलेक्सी में रहने के आदी होते हैं, तो वो क्या करते हैं? दिल्ली आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आकर दे गॉट एनरोल्ड देयर नेम एंड विद बार एसोसिएशन, और एज ए वो सीनियर डेजिग्नेटेड होते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, और आके वो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्या करते हैं? आर्गुमेंट्स होते हैं, क्योंकि सीनियर एडवोकेट जो है कभी केस सबमिट नहीं करता, दाखिल नहीं करता है, वो केवल आर्गुमेंट्स करते हैं। कुछ दिन पुरानी बात है, मैं नाम भी बता देता हूँ, हमारे ही कोई मिश्रा जी हैं, बस इतना बता देता हूँ। चीफ जस्टिस रिटायर हुए, वो कहीं से, किसी राज्य से, ठीक है, किसी राज्य के हाई कोर्ट से। तो मेरे मित्र बने हुए हैं और वो उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। तो मैंने वो लाइब्रेरी नंबर 1 में जल्दी जल्दी फूंक मार मार के चाय पीते थे। मैंने कहा मिश्रा जी इतनी जल्दी क्या है? कहना सामने दो गए यार, आइटम बोलते हैं कोर्ट में। जब हमारे यहाँ डिस्प्ले लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है हर चैम्बर में डिस्प्ले लगा हुआ है, और हर उसमें कैंटीन में सभी में डिस्प्ले लगा होता है, और आइटम नंबर आता रहता है। उसको बोलते हैं आइटम मतलब केस नंबर को आइटम नंबर बोलते हैं। अरे यार 47 नंबर है मेरा, 22 चल रहा है। तो मैंने कहा अभी तो बहुत लंबा है। अरे नहीं कुछ देखना है, कुछ पढ़ना है।
तो मैंने कहा आपको तो कमाल है यार तुम्हें। अरे नहीं, मैं आपने जो केस लिया है तो मेरिट के अकॉर्डिंग लिया होगा, चीफ जस्टिस हैं, आपको तो इतना एक्सपीरियंस, इतना एक्सपोजर है आपका, तो आप इतनी जल्दी जल्दी आप घबरा रहे हैं और जल्दी जल्दी फूंक मार के चाय पी रहे हैं। तो मिश्रा जी ने कहा नहीं नहीं यार शर्मा जी, हर मुकदमे का अपना भाग होता है। जब मुकदमे का भाग्य होता है तो मेरिट क्या होती है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, जब मुकदमे का भाग्य ही होता है तो मेरिट क्या होती है? ये कैसे जाने कि जो जजमेंट हुआ है वो सेंस ऑफ जस्टिस के ऊपर बेस्ड है। इन्हें ज्ञान आता है किस दिन? जिस दिन वैलिडिक्टरी मैसेज जिस दिन होता है, उस दिन बहुत दिव्य ज्ञान आ जाता है हमारे महामहिम को, सुप्रीम कोर्ट की महामहिम को। ऑन कैमरा बोल रहा हूं मैं, और सभी महामहिम जो है एक तरह से कुछ तो आंसू भी निकाल देते हैं कसम से। हमने अपने जीवन में चाह कर भी हम न्याय नहीं कर पाए। जो मैंने जजमेंट दिए हाई कोर्ट में होकर या सुप्रीम कोर्ट में होकर या ट्रायल कोर्ट का जुडिशल ऑफिसर होकर, मैं 75% अपने जजमेंट से खुश नहीं हूं। लेकिन करूं क्या, मैं मजबूर था कि एविडेंस का डिपोजिशन ही ऐसा हुआ। जीपी थरेजा वाला केस, संतोष कुमार सिंह, प्रियदर्शनी मट्टू, याद है आपको? याद है ना? प्रियदर्शनी मट्टू का मर्डर हुआ, संतोष सिंह ने किया। संतोष सिंह के जो पिता थे वो आईपीएस थे, आईजी थे। जीपी थरेजा जी के पास केस था। जीपी थरेजा साहब अपने जजमेंट में क्या लिख रहे हैं, मैंने लिख दिया है, वो डेट टू डेट लिखा है, मेरी बुक्स हैं। जीपी थरेजा लिख रहे हैं, मैं मानता हूं क्योंकि संतोष सिंह सीएलसी में पढ़ते थे, वो सीएलसी का स्टूडेंट था फाइनल का, उसका लास्ट सेमेस्टर था, उसने तो एडवोकेट बन जाना था। और प्रियदर्शनी मट्टू पत्रकार थी, उसका मर्डर ब्रॉड डे में मर्डर किया, सारे शनाख्त सब कुछ मिल गया। जीपी थरेजा लिख रहे हैं अपने जजमेंट में, मैं जानता हूं कि संतोष सिंह ने मर्डर किया, मैं ये भी जानता हूं कि उसने अपने पिता के जो पद का प्रभाव था उसका नाजायज प्रयोग किया। मैं ये भी जानता हूं कि बड़े चालाकी से इसमें बहुत ही कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हत्या हुई। लेकिन सीबीआई साक्ष्यों को ठीक ढंग से नहीं रख पाई। ये वर्ड सुनिए, ये नहीं कहा कि साक्ष्य नहीं रख पाई, साक्ष्यों को ठीक ढंग से नहीं रख पाई। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? इसका मतलब आप प्रोसीजर को ज्यादा महत्व दिया, आपने फैक्ट्स को ध्यान नहीं दिया, आपने प्रोसीजर को महत्व दिया। सिविल केसों में जब सिविल केस लिखे होते हैं तो पहले लिख दिया जाता है, टाइटल में लिखा होता है सीवीसी 151 रूल 9। अरे 151 है क्या? 151 151 होता है, किसी से भी पूछ लेना कि उसकी अतुल्य पावर होती हैं। और फिर 152 सीपीसी में ये पावर होती है कि अगर जज से गलती हो जाए तो जज अपनी गलती को सुधार भी सकता है, क्रिमिनल केस में नहीं सुधार सकता। सिविल की बात कर रहा हूं, सिविल में 152 की भी पावर होती है। और देखिए, एक प्रश्न आया, मुझे ये पूछा गया, सर एक तरफ से कपिल सिब्बल खड़े हो जाएं और एक तरफ से डालसा का वकील खड़ा हो जाए। डालसा जानते हैं ना, दिल्ली लीगल सेल वाला या डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल। डालसा के वकील को
बिहार में 1800 रुपये मिलते हैं, दिल्ली में 3200 रुपये मिलते हैं, और सिब्बल साहब को 50 लाख मिलते हैं। और ये नहीं है कि सिब्बल साहब या मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो और दूसरे वकील ट्रायल कोर्ट नहीं करते, या यूयू ललित ट्रायल कोर्ट नहीं करते थे। शाहरुख खान के बेटे का किसने किया है? मुकुल रोहतगी। ठीक। और सलमान खान को का किसने किया था? बोलो बोलो। सलमान खान का किसने किया था जोधपुर हाई कोर्ट में? पैसा मिलना चाहिए, विकास शास्त्र नहीं, पैसा मिलना चाहिए। ट्रायल कोर्ट में क्या, मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी जाने को तैयार हैं, और अब भी जाते हैं ना, अब भी जा रहे हैं। अगर जेएनयू का केस आ जाए, फलां का केस आ जाए, पार्टी का कोई केस आ जाए, तो ट्रायल कोर्ट में जाते हैं नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। अब ट्रायल कोर्ट में सही क्वेश्चन किया उसने कि सर एक तरफ से ट्रायल कोर्ट में सिब्बल खड़े हो जाएं और दूसरी तरफ से डालसा का हो जाए, तो सर ये तो जजमेंट पहले ही आ गया। एंजॉय कर रहे हो ना मेरी बात को? नहीं आया। इंडियन एविडेंस एक्ट 165 पढ़िए, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, इसको पढ़ के देखना, आप गूगल पे डाल के देख लेना। इंडियन एविडेंस एक्ट 165 दो शब्दों का ऐसा प्रयोग कर रहा है कि जज अगर ऐसी स्थिति में आ जाए और डायलेमा में आ जाए, तो जज को दो रोल निभाने पड़ते हैं। जज जज भी होता है, जज वकील भी बन जाता है। फिर जज जो है, ये जो वर्ड जो दो लिखे हैं, रिलीवेंट एंड इररिलीवेंट, क्वेश्चन कर सकता है किसी भी पार्टी से, फाइंडिंग्स निकालने के लिए, ट्रुथ निकालने के लिए। आप समझ रहे हैं ना? वो किसी को चकमा देने के लिए मिसलीड कर सकता है, मिसलीड तो जानते हैं ना, और लीड भी दे सकता है किसी से उगलवाने के लिए। कितने जज हैं जो सीआरपीसी 160 इंडियन एविडेंस एक्ट 165 का प्रयोग करते हैं? कितने लोग हैं बताइए? जब यह प्रोसीजर है तो उसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया? और सुनिए, हमारे खेत खलिहानों से जो गरीब लोग, किसान जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा करके अपनी भूमि का, अपनी जमीन का, अपने मकान का, अपने घर के लिए केस स्थापित करते हैं। सीपीसी 1115 पढ़ लेना, 115 सीपीसी, उसमें यह लिखा है कि कोई गरीब आदमी अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो केस लड़ ले और वो हार जाए, गरीब किसान, तो उसको अपील डालने के लिए पैसे नहीं हैं, नहीं डालते, तो ऐसे के लिए प्रोसीजर ये किया हुआ है कि हाई कोर्ट हर फाइल को दे, वो उस राज्य का हाई कोर्ट हर फाइल को मंगाए जिसमें 90 दिन में अपील नहीं आई है। 90 दिन होते हैं ना अपील को मिलते हैं। अगर 90 दिन में अपील नहीं आई तो हाई कोर्ट का फर्ज बनता है उसको मंगाए। कहीं ऐसा तो नहीं है गरीब आदमी है, वो गरीबी में आके उसने अपील नहीं दायर की है, फिर उसको ये देखे कि जो जजमेंट है वो जजमेंट सही दिया है उस कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट ने जजमेंट सही दिया है, कहीं लकुमा तो नहीं छोड़ा है, कहीं पार्शलिटी, कहीं प्रीजुडाइज तो नहीं किया है। कितने लोग हैं हाई कोर्ट में, ये सबको जानते हैं, 482 की पावर आ जाती है, 482 की पावर है हाई कोर्ट जज को, जिसमें इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है, डेफिनेशन भी निकाल सकता है। इसे इनहेरिटेड पावर बोलते हैं। हाई कोर्ट की इनहेरिटेड पावर है, रात को दिन, दिन को रात हाई कोर्ट कर सकता है। होती सीआरपीसी की है, लेकिन सच निकालने के लिए कितने 482 का सही प्रयोग करते हैं। और लास्ट में आ गया, लास्ट अब आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। अब तक तो धारा बोल रहा था मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में धारा नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता? अनुच्छेद होता है।
या आर्टिकल होता है। सुप्रीम कोर्ट की जज के पास डिस्क्रिशनरी पावर को 142 की पावर होती है, 142 की पावर होती है, आर्टिकल 142 की पावर होती है, अनुच्छेद 142 की पावर होती है, अतोड़ होती है। 500 साल से ना बने राम मंदिर, लेकिन चाहे तो बना सकता है। जली कुट्टी ना हो जो चाहे वो कर सकता है। दही हांडी हो या ना हो, वो चाहे तो कर सकता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? कुछ बातें सीधी नहीं कही जाती, फिर कैसे हो जाती हैं? क्योंकि पावर है भैया, अतुल्य पावर है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम। हनुमान जी की तरह पूरी पावर है इनके पास। जब आपके पास पूरी पावर है, जब आप गे शादी के लिए लड़ सकते हैं, उल्टा सीधा बोल सकते हैं, सरकार को धमका सकते हैं, सरकार से अड़ सकते हैं, आप फंबल मार सकते हैं गवर्नमेंट पर, अरे कभी अच्छे कामों के लिए भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर लिया करो। फिर क्यों कहते हो कि हमने अपने जीवन में सही जजमेंट नहीं दे पाए? हम 80% जजमेंट से हम खुश नहीं थे। बात यह है कि एक तो आप एफिलेटेड थे, आप एफिलेटेड थे किसी पार्टी से, किसी पार्टी ने आपको जज बनाया था। और जब पार्टी या कोई आदमी, मैं इस लड़के से को आज अगर कोई अथॉरिटी में हूं, इस लड़के को मैं पावर दे दूं, और मैं अगर उस पावर में बैठा हूं कि मैं इसको अफसर बना दूं डायरेक्ट, तो मैं फिर क्या करूंगा? सबसे पहले मेरा काम होगा इससे गलत काम कराऊं, इससे ये फंसाऊं, ये फिर मुंह ना खोले और मेरा वो बन जाए। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? जब एफिलेशन में जब इच्छाएं इतनी पाल लेती हैं, हसरतें इतने पाल लेते हैं कि वे जज बनाया जाएगा, तो वो पार्टी अपना काम भी लेती है, और काम ऐसे ऐसे काम ले लेती है कि वो उसमें फंस चुके होते हैं, और फंसने के बाद वो कभी निकल नहीं पाते, फिर उन्हें करना पड़ता है। ये है। और दूसरी बात यह है कि जब जो मैंने सेक्शंस और आर्टिकल की जिन्हों की भी मैंने बात की है ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा में बात कर रहा हूं, उसमें इन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, नोट लिखना पड़ता है। लेकिन नोट लिखने में टाइम लगता है। कह देते हैं ये कि हमें 60 केस निपटाने एक दिन में, हमारे पास तो वैसे ही वक्त नहीं है। अरे नहीं है तो भैया फिर सेंस ऑफ जस्टिस तो इम्पार्ट करिए। मेरे पास इतना है कि मैं 365 दिन तक नए 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 केसों को कोड करके 1 साल तक बोल सकता हूं मैं, बिना कुछ देखे। ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। जिस लड़की का मर्डर दिखा दिया है, जिस लड़की को भागा दिखा दिया, 9 साल बाद वो लड़की उसी गांव के पंडित की कथा में बैठी है 2 बच्चों के साथ, और शनाख्त किसने की, उसकी हत्या की, उस बॉडी की भी शनाख्त हो चुकी है, और वो लड़की जिंदी है। तो फिर वो लड़की मरने वाली थी कौन, और उस बेचारी का क्या दोष है जो 9 साल से बंद है? अभी आपने अच्छा है, हे प्रभु आप पर कोई आंच ना आए, क्योंकि अब इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन आ गया है सीआरबी ने, जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। कभी भी एफआईआर मत होने देना अपने ऊपर। अगर एफआईआर हो गई तो कोई नहीं बचा सकता, कोई जीवन खराब हो जाता है। लाइसेंस नहीं बनता है, पासपोर्ट नहीं बनता है, नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए सावधान।
कानून में सजग रहिए, सीधे पेड़ ही पहले काटे जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? बड़ा अच्छा एक मैंने कहीं से पढ़ा था, अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव चे नैव चे अजापुत्रम बलीम ददियात देवो दुर्बलात घातिका। अश्व का बलि नहीं दी जाती, गज की बलि नहीं दी जाती, व्याघ्र की बलि नहीं दी जाती, अजापुत्रम बकरी के बच्चे बेचारी की बलि दी जाती है। बलीम ददियात देवो दुर्बल घातिके, देवता भी दुर्बल के ऊपर ही अपना प्रभाव करते हैं। मैंने फौज में 1,10,000 लोगों को सेंसिटाइज किया है। सीएपीए फौजी माने उसको, सीएपीएफ को, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, और मैंने लिखा है उसमें मैं चोराचांदपुर भी, विष्णुपुर भी, मणिपुर भी, कोहिमा भी, पूरा आसाम का एक एक डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश, आपका झारखंड, पूरा बिहार, पूरा बंगाल, कार से 110 दिन में कार से मैंने सेंसिटाइज किया है सीएपीएफ को। जाकर एक ड्राइवर था और इसका भाई था, मेरा फोटोग्राफर बन के गया। 5 फरवरी को, इसी साल 5 फरवरी को वो मेरा एंड हुआ था, मेरा प्रोग्राम। तो मेरे से जो बनता है वो मैं करता हूँ, और मैंने पोल खोली है इनकी, पुलिस की भी पोल खोली है, जजों की भी पोल खोली है, वकीलों की भी पोल खोली है। हम यही हमें नहीं पता कि हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। एम और ऑब्जेक्टिव में फर्क होता है। एम एक होता है जीवन का एम, लक्ष्य एक होता है, रोज रोज के ऑब्जेक्टिव होते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, कल का ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन एक वकील, किसी से पूछा जाए कि भाई क्यों लॉ कर रहे हो, और वकील का काम क्या है? वकील का काम चैम्बर में पहुंच जाना, हाँ भाई आजा रामफल, पैसे लाया अभी? नहीं जी पैसे तो नहीं लाया। अरे इसकी तारीख ले ले, 6 महीने बाद की ली दे, चल। लाला जी आगे 2 लाख रुपए सर लड़का पकड़ा गया है, उसकी जमानत करानी है, हाँ पैसे 2 लाख रुपए लीजिए। अरे राम सिंह मुंशी को कहेगा ठंडा लेके आइयो यार, ठंडा खाने का लिए उससे लेके आइयो, उससे वैसे ही झूठे को फेंका रहा है कि उससे लेके आइयो, बहुत बड़ी बड़ी दुकान से। क्या मकसद है? जज 6 घंटे, आपको मालूम है जुडिशियल ऑफिसर का कितना टाइम होता है डाइस पे बैठने का? बताइए कितना घंटा होता है? कितना घंटा होता है? 6। क्योंकि 2 घंटे उसको चैम्बर प्रैक्टिस के होते हैं और 6 घंटे उसके डाइस के होते हैं। अब वो 6 में से भी 1 घंटा मार जाता है। और जजों को मैंने बता ही दिया है। क्रिमिनल केसों में सबसे ज्यादा बोलने का काम किसका होता है बताइए? सबसे ज्यादा बोलने का काम किसको दिया गया है? नो, सरकारी वकील को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सबसे ज्यादा बोलना पड़ता, ना बोलना चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, सरकारी वकील को प्रूव करना है, सबसे ज्यादा उसको बोलना चाहिए, जो कागज में लिखा हुआ है उसको प्रूव करने के लिए। और सबसे ज्यादा चुप कौन रहता है? सरकारी वकील। बिल्कुल बोलता नहीं मिलेगा। किसी भी कोर्ट में चले जाना, वो बिल्कुल नहीं बोलता मिलेगा। ऐसा देवता की तरह बैठा होता है, और वो डिफेंडेंट लाया कट 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 कट, क्योंकि उसने तो अपना बोलना है। पैसे तो उसको मिले, उसको तो तनख्वाह मिल रही है, तो उसे तो ना बोले तब भी उतना ही है, बोले तब भी उतना ही है। तो ये कौन सा सेंस ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हो भाई? पुलिस क्या कर रही है आपको मालूम ही है। पुलिस अपना, उसका एम क्या है? पुलिस का न्याय की सहायता करना है क्या? रोज मुर्गा ढूंढना है, रोज उल्लू ढूंढना है, रोज अपना शिकार करना है। और
प्रोसीजर प्रोसीजर प्रोसीजर, यहाँ सब अपना काम। यहाँ मैं एक बात बता रहा हूँ, 3 आदमी थे, पहले 2 थे, वो एक आदमी गड्ढा खोद रहा था और दूसरा साथ साथ भरता जा रहा था। वहाँ से एक निकला, उसने कहा अरे भाई तू क्या कर रहे हो भाई, जब तुमने गड्ढा भरना ही है तो खोद क्यों रहे हो? तो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जी हमारा 3 आदमी की ड्यूटी थी, हॉर्टिकल्चर से हैं हम और हमें वृक्षारोपण के लिए लगाया है, मेरा काम है गड्ढा खोदना, इसका काम है गड्ढे में भरना और तीसरा है उसका काम था पौधा रखना। वो आज छुट्टी पे है। यही चल रहा है ना यहाँ, अपना काम हो रहा है भाई, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, मेरी ड्यूटी है, हो गई मेरी पूरी ड्यूटी, मैं मुझे क्या मतलब। सेंसिटिविटी लाइए, आपको भी कह रहा हूं बच्चों, मेरा दिली रूप से आपको आशीर्वाद है, लेकिन मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन में कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया है, हम ख्वाहिशों के बोझ तले इंसान जाने क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना मर रहा है। और ये सही बात है, कल का नहीं पता। तो मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं और साथ में मैं ये कह रहा हूं कि ये किताब 5 किताबें बहुत अच्छी, और ये प्रश्न इसमें बड़ी अच्छी अच्छी जेन्युइन इसमें लीगल हैं। लॉ बदलने के बाद भी, जो लॉ बदल रहा है ना, लॉ बदलने के बाद भी ये किताब नहीं बदलेंगी। यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं सबको पता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है वो कैसा है, आपने अभी बताया और हम सबको पता है। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट जो है और जुडिशियल सिस्टम है वो हमसे ये उम्मीद करती है आम आदमी से कि उनके साथ कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम गवर्नमेंट के पास जाए, जुडिशियल सिस्टम पुलिस के पास जाए, ये उम्मीद है, होता है। हर कोई यही कानून भी है कि आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप जाओ, खुद सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जब जुडिशियल सिस्टम, आपको ही पता है, अभी आपने बताया कि इतना करप्शन भरा है, पैसों के दम पे हम एविडेंस चेंज कर सकते हैं, पूरा एविडेंस चेंज कर सकते हैं हम, पूरा क्या डिसीजन है वो तक हम अपने जो भी चाहे, हम विपक्ष में लें या फिर अपने सपोर्ट में लें, वो हम चाहे कर सकते हैं। उसके बावजूद भी ये उम्मीद क्यों लगाई जा रही है कि हमारे साथ गलत होगा तो हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे। और जो नक्सलाइट्स बनते हैं वो आज के डेट में नक्सलाइट्स का जो वास्तविक रूप है वो कुछ और है, लेकिन जो पहले था, जो 90s के दौर में था। बस मैं समझ गया। देखिए, नक्सल में, नक्सलबाड़ी पूरा नाम है, नक्सलबाड़ी वो जो गांव है सिलीगुड़ी के नीचे, मैं उस गांव में गया हूँ। नक्सलबाड़ी गांव में वो जो उद्देश्य था 1966 वाला 67 वाला जो उद्देश्य था, एक बहुत ही नेक उद्देश्य था। लेकिन आज जो नक्सल में, जो सुकमा में, झारखंड में, जो जगदलपुर में, दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, नांदेड़ में, अब आप कहेंगे आपको कैसे पता है? तो मैं बता चुका हूं कि मैंने फौज को सेंसिटाइज किया है। आज गलत है बेटा, आज गलत है, क्योंकि मैं किसान घर से आता हूं और ऐसे परिवार से आता हूं कि जैसे से हंसराज कॉलेज बिहार के नाम से जाना जाता है। हंसराज कॉलेज में मेजॉरिटी हमेशा से बिहार की रही है, और बिहार वो कोसी माँ जो हर बार बाढ़ लाती है, लोग वहाँ से भाग जाते हैं, फिर वहीं इकट्ठे किनारे पे चले जाते हैं। उसी माँ की तरह जब माँ अपने बच्चों को पीटती है तो वो माँ के ऊपर ही गिरता है बच्चा, देखा है ना? तो इस कोसी के पानी में ही ऐसी कोई चीज़ है कि जो वहाँ से इतना अच्छा प्रोडक्शन देती है। इसलिए बिहार से मेरा बहुत ही दिली लगाव है, और मैं ये मानिए कि आप में से, तुम में से ही एक हूँ। मैं स्काई मार्क से नहीं आया हूँ। आपकी बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ कह रहा हूँ कि एक तो उनके मकसद बदल गए हैं अब,
जिससे मैं परिचित हूँ पूरी तरह, मेरा R&D इसमें है, बहुत मकसद बदल गए। और दूसरी बात यह है कि अपनी बात को कहना आना चाहिए, हमें अपनी बात को कहना नहीं आता है। मैंने ठाकुर साहब वाली बात बताई थी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो डिप्टी वो था DCO था, कोई भी वकील होता तो वहाँ वकालत दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ वहाँ सेंसिटाइज करने की जरूरत थी। तो मैंने सेंसिटाइज किया और 169 की रिपोर्ट, 169 की रिपोर्ट CRPC में, जैसे फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, वो क्लोजर रिपोर्ट लगी और वो था सेंस ऑफ जस्टिस। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में ही अगर ऐसे सेंस ऑफ जस्टिस दे दिए जाएं तो कितने बेगुनाह बच जाएं। और कोई क्वेश्चन? बोलिए बोलिए। अरे बच्चियां, सर आपके हिसाब से ये प्रॉब्लम्स जो आपने बताई कि ये प्रॉब्लम है, जस्टिस नहीं है या बहुत कम है, इसका क्या आपके हिसाब से सर क्या उपाय होना चाहिए? क्योंकि सर मुझे कोई उपाय तो दिखता नहीं है। मतलब आपका है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, हम ही अवेयर हों। देखिए समाज हमसे बनता है, हमसे ही समाज बनता है। हालांकि मैं उन लोगों से चिढ़ता हूँ जो लोग ये कहते हैं अपने को सुधारो। मैं देखिए ना, मुझे वो लोग बहुत अच्छे नहीं लगते। अपने को सुधारो, अरे ये क्या है, तुम अनपढ़ आदमी की तरह अच्छे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं। यहाँ के एक पुलिस DG रैंक के, वो भी मुझे कह रहे हैं, जब मैं उन्हें एक संवेदनशील बात बता रहा हूं तो वो जवाब दे रहे हैं, अरे शर्मा जी अपने को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। ये जवाब है क्या? आप जिस पद पे बैठे हैं उस पद पे ये जवाब है? ये तो लाला का जवाब है। एक प्रयास तो करें, अरे किसने रोका है? लेकिन ये कहना अपने को सुधारो, मैं ऐसी चीज़ों से दूर रहता हूँ। और मैं डायनामिक माइंड हूँ, पूजा अंधविश्वास में नहीं करता। पूजा को मैं जानता हूँ कि पूजा का असर क्या होता है। ध्यान जो होता है किसी भी रूप में, कोई भी किसी का भी नाम, इसीलिए मैं सभी को मैं बता रहा हूँ कि ज्ञान वर्धन ज्ञान संवर्धन दो चीज़ें होती हैं। ज्ञान वर्धन ध्यान से भी होता है, और ध्यान ये होता है कि कुछ भी, किसी भी देवता का, अल्लाह का, खुदा का, भगवान का, किसी का भी नाम लेकर आप चुपचाप बैठ जाइए, इससे आपका ज्ञान वर्धन होगा। और संवर्धन ये होता है कि जो हम गैलेक्सी में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ सीखते हैं, इसे हम संवर्धन कहते हैं। तो और कोई ऐसा नहीं है, एक लंबा विषय है कि कैसे सुधरेगा। हाँ, सिस्टम कैसे सुधरेगा, सिस्टम को हम पहले ही सुधारें। और सिस्टम को अगर जिस दिन पुलिस सुधर जाए, जिस दिन पुलिस सुधर जाए तो 50% तो अपने आप ही सुधर जाएंगे। मुझे मौका नहीं मिला, मेरा तो इतना वाक्या भरे पड़े हैं, इसमें इतने वाक्य हैं कि अजीब अजीब कहानी है। 324 के मामले में 326 लगा के जेल में भेज दिया, उसकी नौकरी छीन ली। आप किसी को भी, मैं दावा करता हूं, और ये मैंने हमेशा से कहा है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कैमरा चल रहा है, जो चाहे किसी की भी नौकरी कभी भी छीनी जा सकती है, ये ध्यान रखना। ऐसे कानून है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो ये कानून आए हैं ना, सेंसिटिव लॉ, जहां मेरा इशारा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये तीनों सरकारें, तीन सरकार होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों सरकारें इसका प्रचार करें। अरे प्रचार करके अगर वो चीज़ें किसी गलत लोगों पे पहुंच गई तो क्या होगा? और ये जुवेनाइल जो जस्टिस बोर्ड बनाया है, अभी जो मर्डर हुआ है परसों दिल्ली में, मालूम है ना, 16 साल के लड़के ने जो किया है, चाकू मार के, और तो कितना, मतलब कितने चाकू मारे हैं, और कूदा है वो उस पे, और कितने, मतलब हैं, बताइए। और 16 साल पूरे नहीं हुए हैं, 16 साल पूरे होने वाले थे इसकी उम्र को। और कल नई चीज जब उसमें निकल के आई है कि इसने 1 साल पहले भी मर्डर किया हुआ है, वो मर्डर भी खुल गया है। वो उसने सिर्फ 20 रुपए के लिए किया था, और ये 300 रुपए के लिए किया है। मालूम है ना आपको?
ये 300 रुपए के लिए किया। जो पहला मर्डर खुला है वो 20 रुपए के लिए किया था। और पॉक्सो कह रहा है कि 18 साल से कम एज के लड़के से अगर कोई लड़की जो 21 साल से बड़ी है या 18 साल से ज्यादा है, वो उसके साथ जबरदस्ती अगर सेक्स या संबंध बना लेती है तो लड़की को अंदर जाना पड़ेगा। संगीता कालेलकर 9 महीने में जमानत हुई है, जो ट्यूशन पढ़ाती थी अपने स्टूडेंट को मैथ का। जया मिश्रा 19 साल की होती है, 16 साल के लड़के को 10th का ट्यूशन पढ़ा रही है। ये दोनों ट्यूशनिस्ट हैं। और वो कालेलकर तो मराठी थी, वो सोलापुर में जाके पकड़ी गई। सोलापुर से पुलिस उठा के लाई, तब उन्होंने अंदर किया। जया मिश्रा पर भी यही लगा उसके माता पिता ने कि मेरे 16 साल के लड़के से नाजायज संबंध बनाए इसने। एक तरफ तो ये लॉ ला दिया तुमने, और एक तरफ यही 16 साल का लड़का कत्ल कर रहा है। हाँ, बच्चा है। इसका मतलब तो यह है कि 16 साल के लड़के इकट्ठे करो और उन्हें सबको से कॉन्स्पिरेसी के तहत मर्डर करा लो या कुछ भी करा लो, बच्चा माना जाएगा। निर्भया केस सबसे अच्छा उदाहरण है। निर्भया केस सबसे अच्छा उदाहरण है। मैंने उसके विद फोटो के है मेरे पास, देखो। निर्भया कांड में सबसे ज्यादा जो उसने जो लोहे की रॉड किसने डाली थी, उसी ने डाली थी। और निर्भया कांड में वही बचा ना भैया। क्या बोलूं यार, क्या बताऊं। सर ये एज किस बेसिस पे इन्होंने रखा है? ये अंग्रेजों के बेसिस पे, ये एक एयर कंडीशन के उसमें, एयर कंडीशन में ऐसे ही दिमाग है। हमारे बच्चे हैं और हम तो एलीट लोग हैं, और हमारे बच्चे ऐसा अगर गलती करते हैं तो भाई इतना बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए कई फैक्टर हैं, और ये मैं जवाब तब दूं जितने लड़के बैठे हैं उतनी लड़कियां भी बैठी हों, तब जवाब देना ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि केवल आपके प्रश्न को मैं अब कहूँगा तो उसका जो रिपरकशंस होंगे वो गलत भी जा सकते हैं। इसको बड़ा साध कर जवाब देना पड़ेगा। हर महिला माँ को बनना होता है, उसको बहन भी होती है, बेटी भी होती है, जेठानी भी होती है, देवरानी भी होती है, ननद भी होती है और बहू भी होती है। साइकिल है ये तो। लेकिन आदमी जब अपनी स्थिति में होता है तो कुछ और होता है, जब दूसरी स्थिति में होता है तो कुछ और होता है। ये तो सामंजस्य, सद्भाव और समन्वय, ये तो साथ बैठकर समझाया, सेंसिटाइज, फिर वही बात आ जाती है। सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आप महात्मा हंसराज महाविद्यालय में आए हैं, और महात्मा हंसराज अपने कई जीवन संदेशों में ये भी कहा करते थे कि सभाएं जो होती हैं वो भीड़ से नहीं, भार से चलती हैं। ज्ञान का भार होना चाहिए, शब्दों का भार होना चाहिए, सभाएं अपनी आप चलेंगी। महर्षि दयानंद वो भी इस बात को कई बार बोलते हैं कि तालाब में तो कई भीड़ लोगों की मिल जाएगी, कुछ लोगों की भीड़ होगी, कहीं मछलियों की भीड़ होगी, बतखों की भीड़ होगी, पर उस तालाब में हंस शायद 1, 2 या फिर 3 ही होगा। एक साथ झुंड में कभी हंस नहीं चलता। आज इस संगोष्ठी कक्ष में जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी महात्मा हंसराज कॉलेज के हंस हैं। और कोई बात नहीं अगर यहाँ पे नहीं हो पाया, पर ये हम सभी लोग जितने भी यहाँ पे हम लोग हंस हैं, आपके इस संदेश को हम लोग बाकी लोगों तक भी फैलाएंगे। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल हम लोग पुनः आपका एक प्रोग्राम जनवरी या फिर जब भी पॉसिबल हो पाएगा, हम जब भी समर्थ हो पाएंगे, एक प्रोग्राम फिर से होगा। आप यहाँ आए, आपने हमें मार्गदर्शन दिया हमें, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम इसी के साथ इस समारोह का समापन करते हैं। धन्यवाद।